A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12 accountancy. As you know very well, in the last three videos, we discussed the tools and techniques by which we analyze the financial statement of company, like in comparative statement of PL, comparative balance sheet, common size statement of PL, common size balance sheet, as well as we discuss the basic concept related to the accounting ratio, the classification of the ratio, and the way by which we present the ratio, simple ratio, fraction ratio, time ratio, and percentage ratio. And already we discussed the inter-firm analysis and intra-firm analysis of the financial statement of company. So in this video, let's we move to the small topic, that is in trade percentage. So first of all, in this video we discussed how company calculate the trade percentage of the organization of the company, and we take the one numerical quotient by which we calculate the trade percentage of the business. And after that, we discuss a lots of practical problem related to the share, debenture, as well as the ratios. So, without creating any delay, let's we start the today's topic, that is a trade percentage. So basically, trade percentage is a percentage by which a company, okay, so trade percentage, it helps in future forecast. Trade percentage, it helps to forecast forecast of of different items of financial statement. It helps to forecast the of different item of financial statement on the basis of the data, on the basis of the data of previous year. बेसिकली जो हम ट्रेंड परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं वो प्रीवियस ईयर की डाटा के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं. जैसे कोई भी आइटम है लाइक अ रारेफो, and there are various datas are given, that is revenue from operation is 1 lakh in the 2018, in the 2019 is a 2 lakh, and 2020 is the 3 lakh. So we can see that अगर हम 2018 को एक बेस ईयर माने, so we can see that 2018 और 2019 के बीच में सेल्स जो है डबल हो रही है, एंड देयर इज अ 2020 में वही सेल्स क्या हो जा रही है, ट्रिपल हो जा रही है. सो विद द हेल्प ऑफ द ट्रेंड परसेंटेज हम फॉरकास्ट कर सकते हैं कि 2020 में हमारी सेल्स क्या हो जाएगी, 4 लाख. सो बेसिकली कंपनी अपना ट्रेंड परसेंटेज यही इसी से कैलकुलेट करती है ताकि उसे पता चल सके कि उसकी कंपनी का जो पर्टिकुलर आइटम्स का जो ट्रेंड है वो अपवर्ड है, डाउनवर्ड है कि नो ट्रेंड है. ओके, सो फॉर अंडरस्टैंडिंग द better concept related to the trend percentage, let's move to the practical problem. Okay, the trend percentage from the following figure of Shalu Limited, taking 2014 and 15 as the base. यानी आपको कौन सा ईयर बेस लेना है, आपको बेस लेना है 2014 और 2015 को बेस लेकर ट्रेंड परसेंटेज कैलकुलेट करना. और इसमें ईयर दिया हुआ है, ईयर विल बी 2014-15, 15-16, 16-17, 17-18, ये फाइनेंशियल ईयर गिवन है, एंड 18-19.
इसमें जो पहला आइटम दिया है वो दिया है आपका सेल्स, ठीक है। तो सेल्स की वैल्यू दी हुई है रुपीज में। 2014-15 का सेल था 1881, सेकेंड ईयर का सेल्स था 2350, थर्ड ईयर का सेल्स था 2655, फोर्थ ईयर का सेल्स है 3021 एंड लास्ट ईयर का सेल्स है 3728। अब आपको सेल्स का ट्रेंड पता करना है। ट्रेंड एनालिसिस कैसे करोगे? विद द हेल्प ऑफ दीज डाटा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको जो ट्रेंड निकालना है उसमें बेस किसको लेना है? 2014-15 को बेस लेकर काम करना है। यानी जब आप ट्रेंड परसेंटेज कैलकुलेट करोगे ऑफ सेल्स का, ट्रेंड परसेंटेज, तो यू नो वेरी वेल आप बेस किसको लोगे? 14-15 को। जिसको बेस लेते हो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? 1881 डिवाइडेड बाई 1881 इंटू 100, क्योंकि उसकी भी वैल्यू भी वही होगी और उसका न्यूमरेटर भी वही होगा, डिनोमिनेटर भी वही होगा। सो परसेंटेज इज 100। अगर आप 2015-16 का ट्रेंड पता करना चाहोगे तो आप कैसे परसेंटेज कैलकुलेट करोगे? 2350 divided by 1881 into 100. So this is the percentage of second year trend percentage, that is the 124 percentage. In the third year you will again, how will you calculate the trend percentage? 2655 divided by 1881 divided into 100, that is a 141 percentage. ओके, सो आई होप ये आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। ये बहुत ही इजी टॉपिक है और ये जनरली आपकी किस टॉपिक से रिलेट करता है? दिस टॉपिक इज रिलेट विथ योर, द टॉपिक इज लाइक अ यू नो, ये टॉपिक आपका उससे रिलेट करता है, स्टैटिस्टिक्स के इंडेक्स नंबर में, जिसमें आप लोग क्या करते थे? बेसिकली एक बेस ईयर लेते थे और उसमें आप लोग बेस ईयर को क्या करते थे? एज अ ट्रेंड परसेंटेज कैलकुलेट करते थे। उसी तरह से आप सेकेंड लास्ट ईयर यानी 2017-18 का ट्रेंड परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करोगे? 3021 डिवाइडेड बाई 1881 इंटू 100, so the percentage is 161. And in the last year 3728 divided by 1881 into 100, that is a percentage is 200. So I hope you will you will create the better understanding regarding the trend percentage, how company created trend percentage. तो अगर आप trend percentage देखो तो पहले साल 100%, दूसरे साल 124, थर्ड ईयर 141, 161 एंड लास्ट ईयर इज 200%। यानी कंपनी की जो सेल्स है वो 1, 2, 3, 4 साल बाद जाकर क्या हो गई? डबल हो गई। यानी आप एक तरह से एक इजिली इंटरप्रेट कर सकते हो या एनालाइज कर सकते हो कि शालू लिमिटेड कंपनी का जो सेल्स थी वो आफ्टर 4 ईयर क्या हो गई? डबल हो गई। 100% से क्या हो गई? डबल हो गई। आप इस तरह से ट्रेंड निकालते हो डिफरेंट आइटम्स का। उसी तरह से मैं आप लोगों के लिए होमवर्क देता हूं घर के लिए कि आप ट्रेंड परसेंटेज निकालना। सपोज ये सेल्स का आइटम है। अब मैं आपको एक आइटम देता हूं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और आप लोग उस कॉपी में नोट कर लेना, दैट इज 321 रुपीज एंड 435, 458, 527 एंड 672। ये सेम ईयर है 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19। आपको उसका ट्रेंड परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है? ट्रेंड परसेंटेज। और बेस किसको लेना है? यही 2014-15 को आपको बेस लेना है। और बेस लेने के लिए क्या करते हैं? उसको 100 लेते हैं और बाकी सारी चीजें कन्वर्ट होगी इन परसेंटेज में, और बेस किसको लिया जाएगा? 321 को बेस लिया जाएगा। तो फिर से आप इस चीज को समझ लो कि हमें बेस किसको लेना है? 1881 को। तो 1881 को जब बेस लेंगे तो उसका परसेंटेज क्या आएगा? 100 आएगा, क्योंकि 1881 न्यूमरेटर भी रहेगा, डिनोमिनेटर रहेगा। बट जब आप 15-16 का परसेंटेज निकालोगे तो बेस क्या होगा आपका? 1881, तो 2350 न्यूमरेटर, 1881 इज अ डिनोमिनेटर इनटू 100, तो परसेंटेज आ जाएगा 124। थर्ड ईयर में भी आप ऐसे ही करोगे। वैल्यू कितनी है थर्ड ईयर में? 2655। 2655 है, उसको डिवाइड करो 1881 से, इंटू 100 कर दो, आ जाएगा 141 परसेंटेज।
1718 में 3021 वैल्यू है, उसको डिवाइड कितने से करना है, 1881 से, इंटू कर दोगे 100 तो आ जाएगा 161%। उसी तरह से 3728 को डिवाइड किससे करोगे, 1881 से डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई किससे करोगे, 100 से, तो आ जाएगा 200%। Okay, let's we move to the practical question. That is, on 1st April 2012, a limited company issued 10% debenture of the face value of rupees 1,20,000 at a discount of 6%. अब मैं कुछ तो आपको इसमें समझा देता हूं कि कंपनी ने 10% डिबेंचर इशू किए 1,20,000 रुपए के, तो रुपीज था 1,20,000 का डिबेंचर था, और एक डिबेंचर की वैल्यू कितनी थी, एक डिबेंचर की वैल्यू थी दैट इज 100, यू नो वेरी वेल, 100 रुपीज एक कॉमन वैल्यू लेके चलो, या एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%। तो 12,000 डिबेंचर, 1,12,000 के डिबेंचर थे, कितने परसेंट, कितने परसेंट पे इशू हुए, इशूड एट 6% डिस्काउंट। ओके, द डिबेंचर आर रीपेबल बाय एनुअल ड्राइंग 40,000 commencing from the end of third year. How will you deal with the discount on debenture? यानी कि कंपनी ने अपना रीपेबल यानी एनुअल ड्राइंग 40,000 रुपए से स्टार्ट किया एट द एंड, फ्रॉम द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। ठीक, हाउ विल यू डील द विद द डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, यानी कंपनी ने रिडम्पशन स्टार्ट किया, रिडम्पशन कब से स्टार्ट किया, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, थर्ड ईयर से उसने रिडम्पशन स्टार्ट किया, कितने रुपीज, 40,000 एनुअली के बेसिस पे। ठीक, आपको बताना है, शो द डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट इन द कंपनीज लेजर फॉर द पीरियड ऑफ ड्यूरेशन ऑफ डिबेंचर, assume that the accounts are closed on 31st March 2000, 31st March each year. Okay, so let's we move to the solution, how we solve this question में, कि बेसिकली 1,20,000 रुपए का डिबेंचर था जो इशू था 6% डिस्काउंट। सो यू नो वेरी वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैलकुलेट कर दो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। डिस्काउंट कितना था, डिस्काउंट था आपका 1,20,000 रुपए का 6%, तो डिस्काउंट की वैल्यू आ जाएगी 7,200 रुपीज। इसी 7,200 रुपीज को हमें राइट ऑफ, लेकिन राइट ऑफ करने के लिए मैं तरीका बताया कि कंपनी हर साल 40,000 रुपए रिडीम करेगी, वो भी रिडम्पशन कब से स्टार्ट करेगी, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। यानी अगर हम ईयर देखें और यहाँ आउटस्टैंडिंग अमाउंट देखें, सो यू नो वेरी वेल, फर्स्ट ईयर आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना होगा, 1,20,000, क्योंकि आपने कोई रिडम्पशन ही नहीं किया होगा। सेकेंड ईयर के बिगनिंग में आपका आउटस्टैंडिंग कितना होगा, 1,20,000 ही होगा। थर्ड ईयर में भी आपका आउटस्टैंडिंग कितना होगा, 1,20,000 होगा, क्योंकि आपने अभी भी कोई रिडम्पशन नहीं किया है। रिडम्पशन कब से करना है, थर्ड ईयर के एंड में, यानी थर्ड ईयर के एंड में जब रिडम्पशन करोगे तो उसका इफेक्ट फोर्थ ईयर के बिगनिंग में दिखेगा। यानी थर्ड ईयर के एंड में जब आपने रिडम्पशन 40,000 किया तो उसका इफेक्ट क्या होगा, फोर्थ ईयर में वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80,000। यानी 1,20,000 में से आपने 40,000 का डिबेंचर का रिडम्पशन कर दिया। फिफ्थ ईयर में आपको पता है, फोर्थ ईयर के भी एंड में जब आप थर्ड ईयर में 40,000 रुपए रिडीम करोगे तो चौथे साल में कितना करोगे, फिर 40,000, फिर पांचवें साल में कितना करोगे, 40,000। तो थर्ड ईयर में जब आपने एंड में आपने रिडम्पशन किया तो उसका इफेक्ट कब पड़ेगा, फोर्थ ईयर में 80,000। जब आपने फोर्थ ईयर के एंड में 40,000 रिडीम किया तो उसका इफेक्ट कब पड़ेगा, फिफ्थ ईयर के बिगनिंग में, कितना, 40,000। और जब आप फिर फिफ्थ ईयर के एंड में रिडीम कर दोगे तो सिक्स ईयर में कितनी वैल्यू दिखेगी, 0। यानी सिक्स ईयर का कोई मतलब ही नहीं, सिक्स ईयर में कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट शो नहीं होगा। 12, 8, 4 और इसको इजी करो, 1, 2, 3, 3, 3। सो ये रेशियो बन गया 3:3:3:2:1। So now you can see that in this question कि is that कि रिडम्पशन जो है वो थर्ड ईयर के लास्ट में स्टार्ट हो रहा है।
तो जब हम थर्ड ईयर के लास्ट में राइट ऑफ करेंगे किसी चीज को, तो उसका इफेक्ट कब से पड़ेगा? उसका इफेक्ट पड़ेगा आपका फोर्थ ईयर से। यानी अगर आप थर्ड ईयर के लास्ट में 40,000 रुपए पैसा रिडीम करोगे, तो उसका पैसा फोर्थ ईयर में कितना हो जाएगा? 80,000। फिर फोर्थ ईयर में फिर 40,000 रुपए रिडीम करोगे, तो फिफ्थ ईयर के बिगनिंग में कितना हो जाएगा? 40,000। फिर फिफ्थ ईयर के एंड में फिर रिडीम करोगे, तो कितना पैसा बचेगा फिफ्थ ईयर के लास्ट में? दैट इज 40,000 अगेन। So you can see that the outstanding amount for the 5 year is first year 1,20,000, second year 1,20,000, third year 1,20,000, fourth year 80,000, fifth year is 40,000. So the ratio is 3:3:2:1, 3:2:1, और इसका टोटल आएगा that is 12. So जब हम राइट ऑफ करेंगे अमाउंट ईच ईयर, रिटर्न ऑफ अमाउंट, तो रिटर्न ऑफ अमाउंट कितनी होगी? पहले साल होगी 7,200 इंटू 3/12, 1800, इसका भी 1800, इसका भी 1800। इस ईयर हो जाएगी 7,200 इंटू 2/12, 1200, और इस ईयर हो जाएगी 7,200 इंटू 1/12, दैट इज 600। सो आपका एनुअली रिटर्न ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ अमाउंट होगा फर्स्ट ईयर 1800, दूसरे साल 1800, तीसरे साल 1800, चौथे साल 1200, और लास्ट ईयर 600। Our next question is pass necessary journal entries and prepare 9% debenture account for the issue of 7,500 9% debenture of 50 each at a discount of 6%, redeemable at a premium of 10%. CBSE 2019 केरला। वेरी गुड, क्वेश्चन केरला से ढूंढ के लेकर आई हो निशा। सो द क्वेश्चन इज, यू कैन सी दैट कि हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। हम इशू कितना कर रहे हैं? 7,500 9% डिबेंचर, 50 रुपए का एक डिबेंचर है, इशू कर रहे हैं 6% डिस्काउंट पे, और रिडम्पशन करना है 10% प्रीमियम पे। सो दिस इज अ सिचुएशन इज रिडम्पशन एट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें राइट डाउन कर लेने दें। issued how much debentures? Issued 7,500 9% debenture of rupees 50 each at 6% discount and redemption at 10% premium. So this is a short information regarding this question. Now we will move to the solution part. So कंपनी कितना डिबेंचर इशू कर रही है? 7,500 डिबेंचर इशू कर रही है, 9% डिबेंचर इशू कर रही है। एक डिबेंचर की वैल्यू 50 रुपए, और उसको 6% डिस्काउंट पे हमें क्या करना है? इशू करना है, और रिडम्पशन करना है 10% प्रीमियम पे। तो इन दिस सिचुएशन हम करेंगे क्या? बेसिकली इस सिचुएशन में हम लोग को करना क्या है? पहले एंट्री पास करना है, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। दिस इज द फर्स्ट एंट्री रिगार्डिंग द इशू ऑफ डिबेंचर। 7,500 डिबेंचर 6% डिस्काउंट पे इशू हुआ। 7,500 मल्टीप्लाइड बाई 50 का 6% कितना आएगा? 50 का 6% आएगा, दैट इज 3 रुपीज। तो इशू कितने पे होगा? 47 रुपीज। और जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे अगेन, सो द सेकेंड एंट्री विल बी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट to 9% debenture. What is the value of the debenture? The value of the debenture is 50. 7,500 into 50. So the value is 000 3,75,000 रुपीज का डिबेंचर था। और जब इशू किया है तो 6% डिस्काउंट पे, तो डिस्काउंट को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ
डिबेंचर। कितना डिस्काउंट है? डिस्काउंट विल बी 6%। 50 का 6% कितना होता है, एक बार फिर से हम लोग निकाल लेते हैं। 50 का 6% आएगा आपका, दैट इज 3 रुपीज। डिस्काउंट 6% डिस्काउंट पे और रिडम्पशन करना है 10% प्रीमियम पे। तो अभी तक आपने देखा 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे हमें कितना रुपए मिला होगा? हमें मिला होगा दैट इज 7,500। 47 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 0, 52, 0, 0, 30। द वैल्यू इज 3,52,500। 3,52,500। This value received on the issue of debenture। डिबेंचर इशू करने पे हमें कितना मिला? 3,52,500। उसके बाद यू नो वेरी वेल डिबेंचर की वैल्यू कितनी थी? वैल्यू थी 3,75,000। इशू पे मिला कितना? 3,52,500। डिस्काउंट कितना है? 3 रुपीज। तो 7,500 डिबेंचर पे 3 रुपीज के हिसाब से डिस्काउंट कितना हुआ? तो डिस्काउंट विल बी 0, 0, 22,500 is a discount. Now you know very well in this question लिखा है clearly redemption at 10% premium। redemption किस पे? प्रीमियम पे। So the value is premium on redemption of डिबेंचर। उसको क्रेडिट करते हैं। कितना प्रीमियम है? 10%। किसका 10%? 50 रुपए। 50 रुपए का 10% कितना आएगा? 5 रुपए। कितने डिबेंचर्स पे? 7,500 डिबेंचर पे। सो 0, 0, 5, 2, 3, 37,500। एंड यू नो वेरी वेल इस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को हम लोग डेबिट करते हैं किस नाम से? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से। कितना हो गया? दैट इज 37,500। सो यू नो वेरी वेल कि डिस्काउंट इशू पे हो या प्रीमियम पे रिडम्पशन हो, दोनों ही आपका क्या माना जाता है? लॉस माना जाता है। तो इन दोनों को अगर आप चाहें तो कंबाइन कर सकते हैं। चाहना क्या है? आपको करना ही करना है, कंबाइन करना ही करना है। तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो कितना आएगा? 0, 0, 0, 0, 60,000। The 60,000 amount will be loss on the issue of debenture. So this is the complete solution of this entry, this question. The first entry, which are the issue of debenture, and second entry, which are transferring the loss, discount, premium or redemption of debenture to the debenture account. So the next question, which are very important, the question is related to the share, chapter number 7. So please share the question. As you can see that on your screen, the question is a company with an authorized capital of 3 lakh invited application for 20,000 share of 10 each, payable on 3 on application, 4 on allotment including premium, 4 on first and final call। यानी 3 लाख रुपए का डिबेंचर, 3 लाख रुपए की अथराइज कैपिटल है जिसमें शेयर है। एप्लीकेशन कितने के लिए आए? 20,000 शेयर, और एक शेयर कितने का है? 100 रुपीज का है, सॉरी 10 रुपीज का है। जिसमें ये पॉलिसी रखी गई कि हम एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे कितना? 4 रुपीज, फर्स्ट कॉल पे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 4 रुपीज। So you can see that the value is 11। 4, 4, 8, 3, 11। 11 रुपीज, जबकि शेयर कितने का है? 10 रुपए का। तो 1 रुपए प्रीमियम का हो जाएगा और 3 रुपए शेयर का हो जाएगा ऑन अलॉटमेंट। आगे लिखा है देयर वॉज ओवर सब्सक्रिप्शन एंड एप्लीकेशन वेर रिसीव फॉर 36,000 शेयर। यानी एप्लीकेशन कितने के लिए आए? 36,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आए, जबकि कंपनी के पास शेयर कितने हैं? ओनली 20,000 शेयर है।
यानी कंपनी 20,000 शेयर ही अलॉट कर सकती है। अलॉटमेंट वॉज मेड एज फॉलोज, 15,000 शेयर होल्डर्स को पूरे 15,000 शेयर अलॉट किए गए, यानी इट इज अ कॉल्ड फुल्ली अलॉटमेंट। एंड नंबर सेकंड विल बी अ 2,500 शेयर्स को कुछ भी नहीं दिया गया, नील। और टू एप्लीकेंट फॉर 18,500 शेयर, जो बाकी बचे 18,500 शेयर, उनको कितना दिया गया, 5,000 शेयर प्रोवाइड किया गया, काफी कम। इसमें लिखा है एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन और एडजस्टेड द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल, जो एक्सेस पैसा आया उसको मैंने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया, कॉल्स पे एडजस्ट कर दिया। ऑल मनी ड्यू वाज ड्यूली रिसीव्ड, गिव जनरल एंट्री एंड अबव द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन शो द कंपनीज बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट पे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसके सॉल्यूशन पे कि कितना पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा, कितना पैसा कॉल्स पे एडजस्ट होगा। सो प्लीज मूव टू द सॉल्यूशन। सो एज यू कैन सी दैट कंपनी के पास 20,000 शेयर है, जिसपे एप्लीकेशन कितना है 3, अलॉटमेंट है 4, जिसमें 1 रुपए प्रीमियम है, 3 रुपए शेयर का है और 4 रुपए कॉल्स के हैं, यानी टोटल ऐड करो तो 11 रुपीज का हो जाएगा। जबकि आपका शेयर कितने का है, 10 रुपए का। इसका मतलब अलॉटमेंट का जो 4 रुपए है उसमें 1 रुपए सॉरी प्रीमियम का है, बाकी 3 रुपए किस चीज का है, शेयर का है। इस तरह से अलॉटमेंट किया गया। अलॉट अप्लाइड आया 36,000 शेयर पे, एप्लीकेशन कितने के लिए आया, 36,000 के लिए, लेकिन आप अलॉटमेंट कितना कर सकते हो, ओनली 20,000 शेयर अलॉट कर सकते हो। उसमें आपने किया क्या, पहले जो 15,000 शेयर होल्डर थे उनको पूरा दे दिया, दूसरे में आपके पास थे 2,500 शेयर होल्डर जिसको आपने कुछ नहीं दिया, और तीसरा था आपका 18,500 शेयर होल्डर जिसको आपने कितना दिया, 5,000 दिया। तो आपको पता है एक्सेस जब आप कैलकुलेट करते हो, व्हेन यू कैलकुलेट द एक्सेस अमाउंट, यहां कोई एक्सेस नहीं होगा, बट यहां जो एक्सेस हुआ 2,500 शेयर पे, क्योंकि आपने तो उसको कोई शेयर नहीं दिया, तो 2,500 शेयर जो उसको जिसने अप्लाइड किया उसको उसने कितना रुपए दिया होगा, 3 रुपीज, यानी 7,500 रुपीज आप क्या करोगे, रिटर्न कर दो। पहली बात क्लियर हो गई होगी। इस सिचुएशन में अगर आप देखो 18,500 को आपने सिर्फ कितना दिया, 5,000, तो 13,500 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया, यानी उसको आपने शेयर दिया ही नहीं, तो यहाँ एक्सेस शेयर कितना हो गया, 13,500। 13,500 वो भी कितने रुपए से एक्सेस किया होगा उसने, रुपीज में 3 रुपीज से, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 005 40,500 आ गया एक्सेस एप्लीकेशन मनी। यानी इन केस ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट, यानी कि केस 3 में आपका एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ गया आपका, दैट इज 40,500। अब इसमें से क्या करना है, आपको कुछ पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है, और अलॉटमेंट पे आप कितना एडजस्ट करोगे, भाई जितना मांगेंगे, उसको शेयर कितना दिए हैं, सिर्फ 5,000 ना, उसको मैंने पूरा 18,500 शेयर तो दिया नहीं, उसको सिर्फ कितना शेयर दिया है, 5,000। तो उससे जब अलॉटमेंट मांगेंगे तो कितने रुपए मांगेंगे, कितने शेयर पे मांगेंगे, 5,000। कितना रुपए मांगेंगे, सिर्फ 4 रुपए, यानी कितना रुपए डिमांड करेंगे, 20,000। यानी 20,000 पैसा किस पे एडजस्ट हो जाएगा, अलॉटमेंट पे। अभी भी उसका एक्सेस कितना आ रहा है, 20,500, अभी भी एक्सेस है, अभी भी उसका बैलेंस कितना आ रहा है, 20,500। फिर जब हम उससे कॉल्स मांगेंगे, फिर कितने पे कॉल्स मांगेंगे, 5,000 शेयर पे, कितना रुपए मांगेंगे, सर कॉल्स की वैल्यू है 4, यानी 20,000 मांगेंगे। यानी अभी आप देखो कॉल्स पे भी उसको पैसा नहीं देना है, कॉल्स मिलने के बाद भी उसका कितना पैसा बच रहा है, 500 रुपए, यानी भी 500 रुपए ज्यादा है, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। यानी बेसिकली यू कैन सी दैट टोटल एप्लीकेशन मनी इज 40,500, जिसमें से 20,000 रुपए अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा, 20,000 रुपए कॉल्स पे एडजस्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 5,000 रुपए, 5,000 शेयर पे हम 4 रुपए अलॉटमेंट का मांगेंगे, 4 रुपए कॉल्स का मांगेंगे, तो अलर्ट एडजस्ट हो गया। उससे भी ज्यादा पैसा है, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, इमीडिएटली रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हमें पता चल गया कि 500 रुपए उसने बहुत ज्यादा दिया है, कॉल से भी ज्यादा दिया है, तो उसको हम रिटर्न कर देंगे। यानी पहली एंट्री क्या होगी, अगर आप एंट्री देखो, फर्स्ट टू एंट्री, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन,
तो एप्लीकेशन कितने पे मिला? 36,000 शेयर पे कितना रुपए मिला? 3 रुपीज। तो कितना रुपए आपको मिला होगा? 1,08,000 आपको रिसीव हुआ होगा। जब आप इस पैसे को एडजस्ट करोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दैट इज 1,08,000 को, तो उसमें शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? जो एक्चुअल पैसा होगा। एक्चुअल पैसा कितना है आपका? एक्चुअल पैसा है दैट इज 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी 60,000। उसमें अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट करना है सर? अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है हमको कितना रुपए? अलॉटमेंट पे हमें एडजस्ट करना है, अलॉटमेंट पे हमें एडजस्ट करना है कितना? कहां गया ये? 20,000 अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है। फर्स्ट कॉल 5 कॉल्स पे कितना एडजस्ट करना है? 20,000। सर रिटर्न कितना करना है? तो रिटर्न आपके सामने है टू बैंक। रिटर्न आपको दो तरह से करना है, एक नील वाले का रिटर्न करना है, ये 7,500 रुपए 7,500 जिसको कोई शेयर नहीं दिया, प्लस आपको कौन सा रिटर्न करना है? ये 500 भी रिटर्न करना है, यानी टोटल आपको रिटर्न कितना करना है? 8,000 रुपए। यानी आपने देखा 1,08,000 में से एक्चुअल एप्लीकेशन बनी है 60,000, 20,000 अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया, 20,000 कॉल्स पे एडजस्ट हो गया और 8,000 रुपीज मैंने रिटर्न कर दिया। 7,500 मैंने किस लिए रिटर्न किया? क्योंकि कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ था, उसका पैसा रिटर्न कर दिया, और 500 रुपए प्रोराटा अलॉटमेंट वाले का रिटर्न कर दिया, जिसने इतना ज्यादा पैसा हमको दे दिया था जो कि कॉल से भी ज्यादा था। So I hope today we discussed all the topics very easily. Okay, thank you, thanks a lot.